ओके, हेलो मैम, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है बीइंग एज अ लेडी? क्या एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी से या फैमिली से? आप क्या सोचते हो वुमेन्स की सेफ्टी के बारे में? और ये I would just like to say that to give them equal amount of rights as they are giving to the male child, and secondly to have full 100% trust on them, not just like that वो गर्ल है तो मतलब उसे ऐसे ट्रीट करो, आप उसे सिखाओ कि खुद का डिफेंस कैसे करना है, हाउ टू टेक द राइट डिसीजन, एंड जस्ट हैव फेथ इन हर, एंड या बस फ्रीडम एंड राइट्स एंड लव हर, लाइक उन्हें इतनी केयर दो कि वो किसी और से उतना एक्सपेक्ट ना करे. My expectations from the society being a lady is that we don't want any empowerment, even equality, and our consideration will be enough. So I don't support women empowerment, but I support equality. No one should be discriminated. If we are women, so we want empowerment, or we want other privileges, but we just want equality. Thank you. I think women should be empowered by themselves, because when they are born, people say that a girl is a princess who needs a prince who will save her kingdom. But I think that a girl is a hero in herself, and she can be fearless and powerful, and she can protect herself and her kingdom. So I think that women are capable of doing anything. okay, so what are your expectations from society, or what do you want to change something in society you see like that? As I'm a woman, I know that whenever I come out or I'm with my friends, their first concern is कि तू लड़की है, तेरे को सेफली घर पहुंचाना है. Like currently also हम दोनों के लिए वही है कि सेफली घर पहुंचो. So this is something that it's like, you know, कि मैं खुद चली जाऊँगी, I got a pepper spray, but no, why should I have pepper spray? Why should I go पहले, you know, before 8 or before 10:30? So this is one thing that I prefer, and of course अभी बहुत ज़्यादा changes हुए हैं, equality and everything is being there, but थोड़ी है सेफ्टी का, तो क्या ही करें, सेफ्टी का ही सोचना पड़ेगा. दैट्स द वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई थिंक પીપલ શુડ ચેન્જ. એટલે આપણે જ્યાં માર્ચ મહિનો 8મી માર્ચે વુમન્સ ડે છે, એ ખાસ કરીને એટલા માટે ઉજવવામાં આવે છે કે એ દિવસેથી સ્ત્રીઓને સન્માન મળે. તો મિસ સમાજ પાસેથી એ જ અપેક્ષા રાખું છું કે સ્ત્રીઓને સન્માન આપવું જોઈએ. દરેક ઘરમાં સ્ત્રી છે એને પોતાનું એને મહત્ત્વ એક જાતનું રહેવું જોઈએ. જે ઘરમાં સ્ત્રીનું મહત્ત્વ નથી રહેતું ને એ ઘરની સુખ સમૃદ્ધિ રહેતી જ નથી. આજે પહેલાંના જેવો જમાનો નથી કે સ્ત્રીઓને મહત્ત્વ ન આપવું જોઈએ. જેમ કે હેલારો પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે, તો સ્ત્રીઓ પણ પુરુષ સમોવડી થઈને રહી શકે છે, તો એને મહત્ત્વ આપવું જ જોઈએ સ્ત્રીઓને. ऑलराइट, सो ऑलरेडी इक्विटी के नाम पे विमेन आर गिवन प्रिविलेजेस जो काफ़ी सेफ्टी के नाम पे होते हैं. बस में रिजर्वेशंस होते हैं, पर काफ़ी विमेन ऐसे होते हैं जो ये प्रिविलेजेस के गलत फ़ायदे उठाते हैं, जो नहीं होना चाहिए. इफ़ यू वांट इक्वालिटी तो फिर गलत फ़ायदे मत उठाओ. इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपको सेफ्टी के लिए आपको रिस्पेक्ट करे, तो फिर आपको भी सामने वाले जेंडर को रिस्पेक्ट करना है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट विमेन, दिस इज़ अबाउट ट्रांस विमेन ऑल्सो, ट्रांस फीमेल्स ऑल्सो. सो yeah, that is my expectations from women and overall everyone. Okay. The biggest expectation or the wish that I have from the society, and especially from women, to become more aware of consuming, especially because that is, I think, one of the biggest problems. We all hear about climate change and we are just talking about it, but it is important that we take steps, and women can be a path breaker. They can be really driving force, because they are the ones who are managing the homes, who are, you know, buying groceries, things. So if they become aware of how much of waste they are generating, and especially plastic waste is being generated, so that is a very important step that can be taken by the society and especially by women. So first of all, तो as a woman freedom is necessary. कि कोई लड़की है, अगर वो बड़ी हो रही है, वो उसे बाहर जाना है, उसे कुछ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी यानी हमारे पेरेंट्स को उन्हें छूट देनी चाहिए. उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए. और अगर
अगर हम मम्मी पापा के वहाँ है, अगर वो भी ऐसे है और अगर हम ससुराल जाएंगे वो भी ऐसे है, तो फिर लड़की की तो ज़िंदगी ही क्या रहेगी। फिर उसकी एक्सपेक्टेशन हो कुछ होती है, उसके भी ड्रीम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ यही कहना है कि लड़कियों को छूट दो प्लीज़। अगर उन्हें पढ़ना है, उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, उन्हें वट एवर दे वॉन्ट टू डू, प्लीज़ सपोर्ट देम, अंडरस्टैंड देम, फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। मीन्स रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन कंप्लीटली। यस, के बॉयज़ कर सकते और गर्ल्स नहीं कर सकती। सो प्लीज़ इट्स माय एंड पेरेंट्स इतनी छूट दे कि लड़कियां खुलकर जो हो वो बता सके कि भाई ऐसा है, मैं ये करना चाहती हूँ। कुछ घर के माहौल ऐसे होते हैं, लड़कियां बोल नहीं पाती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप छूट दें, उन्हें समझे। सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। हाँ, જેમ કે સ્ત્રીઓના આ દહેજનું અત્યારે ચાલે છે, બહુ જ ચાલી રહ્યું છે યુપીમાં, ગુજરાતમાં, બધી જગ્યાએ। જેમ આયશાને હમણાં કર્યું, સુસાઇડ કર્યું, તો એવું બધું ન થવું જોઈએ। એના માટે સંરક્ષણ મળવું જોઈએ કે એવો કોઈ કાયદો ઘડવો જોઈએ કે ભાઈ દહેજ પ્રથા એકદમ બંધ થઈ જાય જળમૂળમાંથી। મારું વિચારવું એવું છે કે આજકાલ જે રેપ થાય છે કે છોકરીઓને બહુ બધી રેપ થતી હોય છે, તો એની માટે છોકરીઓને એવી પ્રિપેર કરવી જોઈએ કે કરાટે ક્લાસમાં છે કે એવી રીતના એ લોકોને એવી રીતના બોક્સિંગ ને એવું બધું કરાવીને પ્રિપેર કરવી જોઈએ કે એ એમનું ખુદનું રક્ષણ કરી શકે, સેલ્ફ ડિફેન્સ જેવું બધું। હું એમ માનું છું કે છોકરી અને વહુને સરખું જ રાખવું જોઈએ। આ સમાજમાં છોકરીઓને વધારે માન આપે છે, વહુને ઓછું। બધાને એક સરખું માન આપવું જોઈએ બને ત્યાં સુધી, અને છોકરીઓને પૂરી સેફટી આપવી જોઈએ। હું એમ કહું છું કે છોકરીઓને રક્ષણ આપવું જોઈએ। આપણા સમાજમાં લેડીઝોને રિસ્પેક્ટ મળવો જોઈએ। ભારત પુરુષ પ્રધાન દેશ છે, સ્ત્રી પ્રધાન દેશ બનવો જોઈએ। સ્ત્રીઓએ આગળ પડતું હોવું જોઈએ અને કોકાને કમતી નથી હોવો જોઈએ। ओके, थैंक यू सो मच। आयशा के केस में तो मैं यही सोचती हूँ कि आयशा का क्या है कि कोई भी ऐसे मीन्स हस्बैंड होता है ना, तो वो अपनी पहले तो है ना अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करे, फिर अपनी मीन्स जो वाइफ है उसकी करे। और मुझे तो बस यही है कि मैरिज के बाद वुमन को या गर्ल्स को जॉब करनी चाहिए और खुद के पैर ऊपर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके क्या होता है कि ऐसे आपको वो क्या डोमिनेट हो जाएगा कि नहीं तू तो कमाती नहीं है तो तू चुप रहे। आयशा के केस में वही हुआ होगा। हाँ, क्योंकि देखो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो यंगस्टर्स होते हैं, अभी मैरिज के पहले जब रिलेशन सब अच्छा ही लगता है सब कुछ, लेकिन जब मैरिज हो जाता है फिर वो उसको तो क्या घर संभालना, फिर उसके पेरेंट्स को संभालना वही हो जाता है। लेकिन जब जब टाइम आएगा कि जब फाइनेंशियल का, फिर सब उसी पे ही ब्लेम करेंगे कि तू कुछ नहीं करती है, फिर कुछ कमाती नहीं है, तुझे मेरा ही सुनना है बस। कि मुझे तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि गर्ल्स को जॉब करनी ही चाहिए। एग्जैक्टली, सेल्फ डिपेंडेंट किसी पे ना हो, खुद के पैरों पे खड़े होना चाहिए। करेक्ट मैम। मैम आप क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि जो मैरिज के बाद जो दहेज है तो आयशा में ऐसा ही हुआ था कि 1.5 लाख रुपए मांगे थे और फिर उसे टॉर्चर किया जाता है कि ऐसा कुछ है, वो सब बंद करना चाहिए। आई थिंक ये सब तो फुल स्टॉप लगा देना चाहिए इसमें। बीइंग अ गर्ल, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन इज़ ऑफ इक्वालिटी। जैसे कि हर जगह पे, नॉट ओनली वर्किंग एरिया, हर जगह पे लड़कियों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। नो डाउट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने काफ़ी अच्छे रूल्स एंड ऑल किए हैं, जिसके वजह से अभी काफ़ी अच्छा हुआ है जनरेशन, एंड गर्ल्स टू फील सेफ टू लिव इन गुजरात। सो ऐसे कुछ एरियाज़ है, लेकिन जनरली आज के टाइम पे भी कि हम लोग फील कर रहे हैं कि नहीं इक्वालिटी नहीं है करके। लाइक हम अपना जिम का सेशन ले सकते हैं। जिमिंग में भी काफ़ी जगह ऐसा मुझे फेस करना पड़ा है कि बीइंग अ गर्ल यू कम आफ्टरवर्ड्स। हमारे लिए स्पेशल टाइमिंग्स है कि सिर्फ सुबह ही आ सकते आप लोग, ड्यूरिंग ये टाइम पे मत आइए, आप वेट हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते। एक अलग नज़र से ही देखते हैं। ड्रेसिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं आपको फुल्ली पहन के आना, ये नहीं करना। क्यों भाई, मेरे बॉडी में कुछ भी पहनूँ, आपको क्या जा रहा है? आप अपनी नज़रें अच्छी कीजिए, राइट। सो ये है इक्वालिटी की इश्यूज़ है, नज़रिए की इश्यूज़ है, ड्रेसिंग सेंस में आज तक प्रॉब्लम होते आया है, और यही सब है। ओके आंटी, आप बताइए एज अ लेडी आप क्या अपेक्षा रखते हो सोसाइटी से? मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि कानून सख्त होने चाहिए। कानून इसलिए क्योंकि
हमारे इंडिया में कानून तो है लेडीज़ के लिए, बट उस कानून को मतलब बहुत स्ट्रांगली इसको नहीं देखा जा रहा है। इसके लिए मुझे मतलब मोदी जी से खास करके मुझे खास रिक्वेस्ट है कि लेडीज़ के लिए जो कानून बना है अच्छी बात है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट और स्ट्रांगली होनी चाहिए। और जो हमारे जो सोशल वर्कर है उन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि कोई कंप्लेन लेके आते हैं तो फिर उस कंप्लेन को इग्नोर ना किया जाए, स्ट्रांगली इसको सही में समझाओ, या तो इसको स्ट्रिक्टली इसको मतलब बोलो कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करोगे तुमको जेल हो जाएगा। मुंह से बोलने की बात नहीं, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करो कि कोई लड़की का ज़िंदगी मतलब ख़राब ना हो जाए, बस। Okay, thank you so much for sharing such a beautiful views. Thank you.